और इस वक्त लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं तमिलनाडु से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, कन्नूर में, तमिलनाडु के कन्नूर में फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि सीडीएस विपिन रावत भी इसमें शामिल थे और इसके साथ साथ कई और आला ओहदेदार फौज के सरबराह इसमें शामिल थे। विपिन रावत की अहल खाना भी इसमें हमरा थे। और आपको बता दें विपिन रावत सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और साथ ही इसमें सबसे जो अहम पहलू ये है कि जो ज़राए के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है उसके मुताबिक कुल 9 अफराद इसमें सवार थे और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगातार इसमें अब बतदरीज इजाफा हो रहा है। हेलीकॉप्टर में अब खबर है कि 14 अफराद सवार थे और इन 14 अफराद में सीडीएस रावत की अहलिया भी मौजूद थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ पहले की तस्वीरें हैं सीडीएस रावत, विपिन रावत की। और साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो जाए हादसे की तस्वीर है जहां पर हेलीकॉप्टर गिरा, क्रैश होकर हेलीकॉप्टर गिरा, क्रैश हुआ और उस पर फिर जो है वो शोलापोश हो गया। उसके बाद हालांकि कुछ वक्त लगा, कुछ वक्त के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और जिसने बचाव काम शुरू किया है। लेकिन अब वक्त अभी मजीद जानकारी का हमें इंतजार है, लगातार इस पर हम बने हुए हैं। शारदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मजीद जानकारी के साथ। शारदा, जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द डिटेल्स कमिंग अप नाउ। Indian Air Force helicopter has crashed, as you mentioned, at Kunnur in the Nilgiris district of Tamil Nadu. The chopper had been carrying, we come to know, 4 people, including Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat. And initial reports say that his staff and some of his family members, those are the 4 people on board the chopper. This is what we come to know from the initial reports. And rescue operations, as you mentioned, are on, and we are yet to know about the complete details of the rescue operations. This is a spot identified as between Coimbatore and Sulur, near Kunnur in the Nilgiris district of Tamil Nadu. As you had mentioned, 2 people have been rescued, and we come to know that they have been taken to Wellington Cantonment Hospital in Nilgiris district. An inquiry also certainly has been ordered to find out the cause of the incident. We are yet to know more details about the rescue operations and also about the cause of the incident and the state of the people who've been admitted in the hospital. Initial reports say that they have suffered severe injuries, and treatment is underway for them at the hospital, and on the other side rescue operations are also underway. शारदा, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, एज द रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट देयर आर सर्टेन casualties, कैन यू हैव सम डिटेल्स अबाउट दिस? We do not have confirmed information on the casualties, but from the visuals we can see that the helicopter crashed, and we can see massive flames, and we can also see the local people there helping with the immediate rescue operations before the rescue teams could arrive. Since it is an Air Force military chopper carrying senior officials, we have had rescue teams immediately arriving there. And we are yet to know confirmed details about the casualties, if any, and the status of people who've been injured. The local military officers have also been, they have also reached the location. But we come to know that the local people there have taken 2 bodies with 80% burns to a local hospital. So these are reports coming from different news agencies and from different tweets from people who are there at the spot right now. So an inquiry, as I said, has been ordered, and we are yet to have any confirmation about the bodies recovered by the locals. So the hospital has to confirm about the status of the people who were on board, and as I said, rescue operations are also underway.
Shada, one more thing would like to know that there are reports that those family persons or the relatives of the higher officials in army, they were also boarded with them. So can we have any information further that who were they, as there were report about the wife of CDS General Bipin Rawat? See, so far we only know that the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, was on board, and we also come to know, as you mentioned, some of his family members and staff were also on board. But we are yet to know exactly who was there on board and what is their condition. Indian Air Force has tweeted saying this is what their tweet is: an IAF Mi-17V5 helicopter with CDS General Bipin Rawat on board met with an accident today near Kunnur, Tamil Nadu. An inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. So this is the official information we have so far, and the rest of the information we have so far is from different news agencies. So we are yet to reach the family members of the people on board, or we are yet to know about the status of those who were on board. So क्या समझा जा रहा है? What were basically the reason? Means were there some technical snag, कुछ तकनीकी खराबी थी, या because of this some disturbance in the weather condition? Sharda? Yeah, an inquiry has been ordered, and they will definitely find out what the cause of this incident. Sharda, कुछ और जानकारी चाहिए आपसे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो. फर्स्ट टाइम क्या टाइम रहा होगा? व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट रिपोर्टेड फर्स्ट? This was reported an hour back, so around 12:30, 12:45, before 1 o'clock. That was when it was reported, and the rescue teams have reached the spot immediately. Yeah. So any information about this tour? What was the reason of the program they were going to attend, or where were they going to attend this? We do not have exact information or confirmed information about their travel. Yeah. Okay, शारदा, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ इस वक्त तमिलनाडु से हमारे नुमाइंदा शारदा जुड़ी थी, जिन्होंने मजीद जानकारी दी. उनका सीधा कहना है कि जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स है उस पर यह बात सामने अभी आ रही है कि ये हादसा हुआ है. इसमें 14 लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस बारे में अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इसमें कोई जाने नुकसान हुआ है या फिर कितना हुआ है. लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आ रही हैं और जो शारदा बता रही थी कि जो वहाँ लोकल न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें इस बात की तस्दीक होती है कि कुछ हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये कौन है या उनकी पहचान क्या है, अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. लेकिन ये एक बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा इसे हादसा माना जा रहा है. और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जो हमारी तीनों जो सेनाएं हैं उसके सरबरा, उसके चीफ थे बिपिन रावत. तो क्या बिपिन रावत अभी बिल्कुल महफूज हैं, वो ठीक हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी फिलहाल मिल नहीं पा रही है. लेकिन ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ जो जख्मी थे उन्हें मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है. लेकिन इस बारे में और जानकारी इकट्ठा लगातार की जा रही है. आपको बताएं कि जो CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वो हेलीकॉप्टर में, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर उसमें सवार थे, उनके साथ कुल जो तादाद अभी सामने आ रही है, कुल 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे. और वो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के पास नीलगिरी जो पहाड़ियों का एक सिलसिला है, वहाँ पर ये शिकार हुआ हादसे का. और हादसे का शिकार होने के बाद जो है जब वो हेलीकॉप्टर ज़मीन से टकराया, ज़मीन में नीचे गिर पड़ा, तो उसमें फिर आग के शोले जो है वो निकलने लगे और उस पर वो बहुत जल्द पूरा हेलीकॉप्टर जो है बताया जा रहा है कि वो शोलापोश हो गया. ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं. और
इस बारे में जो जानकारी भी आ रही है कि जो वजीर दिफा हैं, वजीर दिफा राजनाथ सिंह यानी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस हादसे की जानकारी वजीर आजम को दी है। अभी ये खबर इस वक्त आ रही है सामने कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बारे में इत्तला दी है, मुत्तला किया है कि इस तरह का एक हादसा पेश आया है और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो है वायु सेना जो एयरफोर्स है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि क्या वजह रही होगी इस बारे में कि यह हादसा पेश आया। क्या ये कोई टेक्निकल स्नैग था या फिर कुछ मौसमी दुश्वारी थी, इस पर अभी इसके जांच के हुक्म दे दिए गए हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वजीर आ रहे हैं उन्होंने भी इस बारे में अफसोस का इजहार किया है। हमारी नुमाइंदा पदम प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है एक मजीद जानकारी के साथ। पदम प्रिया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब और एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी आ पा रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये इंडियन एयरफोर्स की M-17 हेलीकॉप्टर जा रही थी दिल्ली से सूलूर तक। कुंदूर में जो है वेलिंगटन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां तक जा रहा था ये हेलीकॉप्टर। इसमें CDS बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और उनके कोई फैमिली मेंबर्स भी थे, ऐसे अनकन्फर्म सोर्सेस बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और उसमें सीनियर ऑफिसर्स और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स टू CDS सारे शामिल थे। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ये बहुत ज्यादा ही घायल थे, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इस मामले में अभी इंक्वायरी एयरफोर्स के डिफेंस ऑफिसर्स शुरू किए हैं और उनके सामने कुछ ज्यादा ही मुख्य सवाल खड़े हुए हैं कि डिस्पाइट गेटिंग क्लाइमेटिक इंटीमेशन की अभी इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई, क्यों ये हेलीकॉप्टर सवार था, ये पहला सवाल है उनके सामने। और तमिलनाडु में जो ये वेलिंगटन का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ तक जाने के लिए रोड्स काफी अच्छे रोड्स हैं। रोड्स को इस्तेमाल किए बगैर CDS को हेलीकॉप्टर में क्यों लेकर गए थे, ये भी उनके सामने सवाल है। और ये जो क्रैश साइट में जो लोगों को अभी रेस्क्यू किए हैं, ओके, वी हैव एन इम्पोर्टेंट अपडेट इन दिस रिगार्ड। CDS बिपिन रावत को अभी रेस्क्यू किया गया है क्रैश साइट से और उनको बर्न इंजुरीज है, ऐसे हमें पता चल रहा है और उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त प्रिया आप हमारे साथ बने रहे। मैं अपने नाज़रीन को एक बार बहुत साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें जख्म आए हैं, बर्न इंजरी है और उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। जो अभी खबर मिल पा रही है, हमारी नुमाइंदा पदम प्रिया ये हमें जानकारी दे रही है, जनरल बिपिन रावत जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें बर्न इंजरीज हैं। लेकिन ये खबर अहम है कि उन्हें रेस्क्यू किया गया है और इससे एक उम्मीद जरूर बंधी है। पदम प्रिया, और क्या डिटेल है आपके पास? हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स कुछ उनके साथ सवार थे ऐसे सुनने में है, लेकिन कौन कौन सवार थे इसका डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हुआ है। और जो लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है उनको आइडेंटिफाई करने का काम अभी जारी है। और ये जो है कोयम्बतूर से लेके सूलूर तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक फॉरेस्ट एरिया में ये क्रैश हुआ है और क्रैश होने के वक्त लोकल पीपल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के मुताबिक फायर इंजन वहां पे चले थे। अभी फायर रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ है, फायर हैज बीन कंटेन, लेकिन जो भी इंजर्ड को रेस्क्यू कर रहे हैं हर किसी को बर्न इंजरीज है ऐसे सुनने को मिला है। जी पदम प्रिया, क्या ये जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे पाएंगे कि क्रैश की जो टाइमिंग है तकरीबन 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है? अभी हम कुछ देर पहले शारदा से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था। तो क्या ये 12:30 बजे का ही वाकया है? इस बारे में कोई कंफर्मेशन है? और कितनी देर के बाद ये इंफॉर्मेशन आई और कितनी देर के बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंच सकी?
जी नहीं, ये अपडेट के लिए तो अभी मैं भी वेट कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अभी इसका जो इंक्वायरी है डिफेंस के हाथ में दिया गया है, तो वील हैव टू वेट ऑन द रिपोर्ट दैट द डिफेंस गिव्स ऑन दिस। ठीक है पदम प्रिया, एक और सवाल है, वो ये है कि ये जो रीजन है जिस इलाके में ये हुआ है क्रैश, आपने बताया कि कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर टू टेक ऑफ, लेकिन क्या ये अभी वहां पर ऐसे मतलब मौसम दिखता है कि वहां पर कुछ खराबी है मौसम में? जी, एज यू नो, अभी मानसून सीजन है तमिलनाडु में। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफी जगह में हेवी रेनफॉल इनकर हुआ है, एंड ऑन अ डेली बेसिस ये थोड़ा बदलता जा रहा है। एंड कुन्नूर इज वन ऑफ द प्लेसेस विच हैज मेट वेरी हेवी रेनफॉल इस मानसून सीजन में, तो इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड कुन्नूर इज बेसिकली अ हिल स्टेशन, एंड वहां पे इवन इन समर सीजन बादल थोड़े घने होते हैं। इट इज पॉसिबिलिटी दैट शायद क्लाइमेट फ्लाइंग के लिए सूटेबल ना रही हो। ये पॉसिबिलिटी इस बात की है। पदम प्रिया, मैं बहुत सारे सवाल मैंने आपसे किया, लेकिन अगर आप कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जो देना चाहती हैं प्लीज बताएं। जैसे कि मैंने बताया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ फॉर्चुनेट न्यूज कि सीडीएस अनहार्म्ड हैं, उनको बर्न इंजरीज हैं और वे सही सलामत है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे उसमें सुनने को मिला है कि 2 people have been rescued in demised condition। उसका भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग ऑन द कंफर्मेशन जी। अभी लेकिन दो बॉडीज, यानी कि दो ऐसी बॉडीज जिन्हें ये हम कह सकते हैं कि उनमें अब लाइफ नहीं बची है, ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं और भी जराए से, तो 2 के बारे में तो खबर आ रही है, लेकिन क्या इस बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट मिल पाई है कि कुल कितने लोग सवार थे? चूंकि एक रिपोर्ट में 9 की बात आ रही है, एक में 14 यानी 14 की बात आ रही है। No, अपने सोर्सेज जो बता रही है, वी कैन से दैट 14 people have traveled on the chopper। जैसे मैंने आपसे पहले बताया, इस मामले में लोकल पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है, डिफेंस इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, तो उनका रिपोर्ट जब आएगा, that would be the final confirmation of all the data that we've gathered so far। But the details that I'm giving you, ये वहाँ जो ग्राउंड में है अपने रिपोर्टर्स उनके थ्रू मालूम हो रहा है। और अभी ये भी सुनने को आया है कि इट इज रिपोर्टेड दैट हिज वाइफ, बिपिन रावत की वाइफ मधुलिका रावत हैज बीन रेस्क्यूड एंड शी माइट हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड, लेकिन दिस इज अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट जी। लेकिन ये रिपोर्ट भी पदम प्रिया, मैं चाहूंगा कि मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये खबर भी आ रही है कि बिपिन रावत की वाइफ जो है उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है, जिनका नाम है मधुलिका रावत, लेकिन इस बारे में अभी पूरे वसूख से नहीं बताया जा सकता। ऐसी खबरें आ रही हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी उन्हें भी कुछ हल्की फुल्की चोट आई हो शायद, लेकिन इस तरह की खबर है कि मधुलिका रावत जो बिपिन रावत की अहलिया है, उन्हें भी रेस्क्यू कराया गया है। कुछ और नाम पदम प्रिया हमारे पास आए हैं, जिनमें ब्रिगेडियर एलएस लिडा का नाम शामिल आ रहा है, और लेफ्टिनेंट कॉलोनल हरजिंदर सिंह का नाम आ रहा है कि ये लोग उसमें ऑन बोर्ड थे, और गुरसेवक सिंह और जितेंद्र कुमार और विवेक कुमार, बी साई तेजा, सतपाल, ये नाम है जो उनमें बोर्डेड थे। और मैं पदम प्रिया आपको अभी शुक्रिया कहना चाहता हूं इस जानकारी के लिए, और मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर आपके पास आऊं तो मुझे और इंफॉर्मेशन आपसे मिल पाए। तो इस वक्त की जो काफी अहम, सबसे बड़ी अहम खबर है वो यही है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, और जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा तो, या गिरकर क्रैश हुआ तो उसमें आग लग गई। और जो अभी खबरें आ रही हैं हमारे जराए के हवाले से, उसके मुताबिक कुल 14 अफराद इसमें सवार थे, जिनमें खुद सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उसमें थे, उनकी अहलिया थी मधुलिका रावत,
और ये भी खबर अभी आई है कि बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को और उनकी अहलिया को, जिनका नाम मधुलिका रावत है, इन्हें रेस्क्यू किया गया है और इनके बारे में खबरें हैं कि इन्हें बर्न इंजरीज हैं, लेकिन अभी उनकी कंडीशन क्या है, वो कितने सेफ हैं या कितने क्रिटिकल कंडीशन है, इस बारे में अभी बहुत ऑफिशियल या ज़्यादा साफ अभी खबरें हम तक नहीं पहुंच पाई। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की, और इसी बीच कई बड़े जो हस्तियां हैं, बड़ी या जो लीडरान हैं, उनके ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट आ चुका है, वो इस हादसे पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है, वो इस मामले पर उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है और जितने भी लोग उसमें सवार थे उनकी खैरियत की ख्वाहिश की है। और हमारे जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, उनका भी इस पर ट्वीट आ चुका है और उन्होंने भी इस बारे में दुख का इजहार किया है और इस बारे में उन्होंने वो दुआ की है कि जो भी लोग उसमें सवार थे वो सब के सब लोग खैरियत के साथ हों। ये लगातार इस वक्त की अहम खबर। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में ये हादसा पेश आया है। इस बारे में जो एयरफोर्स है उसने इसकी एक इंक्वायरी अनाउंस कर दी है और इसकी इंक्वायरी चल रही है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हुई। और इसी बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है और उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, होपिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड अदर्स ऑन बोर्ड द चॉपर, प्रेयर्स फॉर स्पीडी रिकवरी। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और साबिक सदर हैं पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट करके ये दुआ की है। उन्होंने कहा है कि मैं दुआ करता हूं या मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग भी इसमें सवार थे हेलीकॉप्टर में वो सकुशल रहें, खैरियत से रहें, खैरियत से हो, और जो इनमें जख्मी हुए हैं वो बहुत जल्द सेहतयाब हो सके। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया है। लगातार इस बारे में अब ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं जैसे जैसे लोगों तक ये खबरें पहुंच रही हैं। और इसी बीच जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पूरे वाक़े की तफसीली रिपोर्ट, तफसील से इस वाक़े की जानकारी वजीर आज़म को दे दी है। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें बर्न इंजरीज हैं, लेकिन उन्हें रेस्क्यू किया गया है। और उन्हें जो भी अब जो ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर है। और ये भी खबर आ रही है कि जनरल बिपिन रावत की जो अहलिया है उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है और उन्हें भी बर्न इंजरीज हैं, लेकिन उस इंजरी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिपिन रावत के बारे में अलबत्ता ये ज़रूर खबर है कि उन्हें जो इंजरीज आई हैं, बर्न इंजरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये अभी फ़िलहाल जानकारी आ रही है। बहुत सारी जानकारी अभी ऐसी है जो आ रही है, उसे हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाएँ, भले ही थोड़ी उसमें ताख़ीर हो लेकिन जानकारी सही मिल पाए। और जो हमारे नुमाइंदा, अभी हम शारदा से बात कर रहे थे, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, पदम प्रिया से भी हमने बात की। इन्होंने ये बताया है कि जो लोकल वहाँ के न्यूज़ एजेंसीज है, लोकल रिपोर्टर से या हमारे जो रिपोर्टर वहाँ पे है ग्राउंड पर, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन चूँकि इसे अभी जो एयर स्टाफ है और उसने इसके एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, तो इस बारे में अभी वो इंक्वायरी वहाँ के लोकल पुलिस के हाथ में नहीं है, बल्कि वहाँ से ये जानकारी जो हमें मिल पा रही है। सेना का जो MI-17V5 17V5 हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ और हादसे वाली जगह पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह जा सकते हैं, ऐसी खबर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह हादसे की जगह पे, यानी जाए हादसे पर जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उस जगह का मुआयना कर सकते हैं। राजनाथ सिंह वहां पहुंच सकते हैं, वहां जा सकते हैं। जो वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस तरह की अभी खबरें आ रही हैं। तो ये सबसे अहम है कि जो 14 लोग इनमें सवार थे, जो खबर आई है उनमें से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को रेस्क्यू कराया गया है
और इसमें ये बात आ रही है सामने कि उन्हें बर्न इंजरीज हैं, लेकिन वो बर्न इंजरीज ज़्यादा नहीं है गहरे। और लेकिन एक साथ ये खबर भी है जो थोड़ा दिल को तकलीफ दे रही है, वो ये खबर है कि जाए हादसे से 2 डेड बॉडीज भी बरामद की गई हैं, लेकिन अभी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी शनाख्त नहीं हो पाई है कि जो हलाकतें हुई हैं वो कौन है, किन की हलाकत हुई है। लेकिन ये भी खबर है कि कई लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसमें CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी अहलिया भी सवार थी। और ये तमिलनाडु के कन्नूर के जगह पर यह हादसा पेश आया है और सबकी इस वक्त यही दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बल्कि तमाम लोग शायद बच जाएं और उन्हें जो चोटें आई हैं वो जल्द से जल्द वो चोटें या वो ज़ख्म जो है वो हील हो जाए। मैं आपको इस बीच बता दूं कि जो हमारा एयरफोर्स है उसने इस मामले की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और अब तक 2-3 रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग। उसके मुताबिक एक रिपोर्ट ये भी है, 2 लोगों की मौत की खबर तो हम पहले से आपको बता रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मरने वालों की तादाद यानी जो लोग हलाक हुए हैं वो तादाद 4 तक है। हालांकि अभी इसके बारे में हम तस्दीक या वसूख के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक रिपोर्ट ये है कि मरने वालों की तादाद इसमें जो है वो 4 है। तो तमिलनाडु के कन्नूर में जो आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें ये हलाकतें हुई हैं और ये हलाकतें और ज़्यादा हैं या कम हैं इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। PTI के हवाले से जो खबर आ रही है, जो हमने भी पहले आपको बताया है कि 4 बॉडीज रिकवर्ड, 4 बॉडीज मिली हैं और 3 इंजर्ड पर्सन्स रेस्क्यूड फ्रॉम IF हेलीकॉप्टर क्रैश साइट। तो 4 डेड बॉडीज मिली हैं, अगर इसे ऑफिशियल मान लें फिलहाल तो 4 डेड बॉडीज और 3 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है, तो 7 का तो ये शुमार यहां पर बन रहा है। और इस तरह से जो IF का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके साइट पर से, उस जाए हादसे पर से ये खबर अभी आ रही है। इसमें कुल 14 लोग सवार थे। ये है तो अगर ये 14 लोग सवार थे और 4 बॉडीज अगर मिली हैं तो ये कौन लोग हैं, किन किन की शनाख्त हुई है, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं, चूँकि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, तो पार्लियामेंट में वो इस बारे में ब्रीफ करेंगे पार्लियामेंट को, सदन को ये बताएंगे, ऐवान को ये बताएंगे कि क्या हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल ब्रीफ पार्लियामेंट on the crash of an army chopper in Nilgiris in Tamil Nadu. The chopper had Chief of Defence Staff Bipin Rawat, his staff and family members on board. तो ये खबर इस वक्त है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट पे ये इस बारे में, इस हादसे के बारे में जानकारी देंगे, तफसीलात जो है वो शेयर करेंगे। और ये भी इस बीच खबर आई थी कि हो सकता है कि वजीर दिफा जाए हादसे का दौरा भी करें। और इससे बीच आपको हम बता दें कि जो मरकजी काबीना है उसकी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग में ये बात रखी है, इस बारे में तफसील बताई है और वज़ीर आज़म को भी इस बारे में जानकारी दी है। ये हम आपको पहले से बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इस बारे में मुत्तला किया गया है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ज़रिए। और अब जो खबर है वो ये है कि पार्लियामेंट में भी ये बात, पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तमाम जो वहाँ पर अरकान पार्लियामेंट है उनके सामने वज़ीर दिफा इसके बारे में मज़ीद जानकारी देंगे। तो तमिलनाडु से इस वक्त की बहुत अहम खबर, बहुत ये बड़ी खबर है
कि सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और उस हेलीकॉप्टर में CDS भी सवार थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी सवार थे। जो वहाँ के कलेक्टर हैं, मकामी कलेक्टर हैं कन्नौर के, उनके हवाले से ये खबर है कि 4 डेड बॉडीज वहाँ जाए हादसे से पाई गई हैं और साथ ही साथ 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ये खबर है। लेकिन इसमें लगातार अभी और मज़ीद जानकारी आती जा रही है और ये खबर लगातार अपडेट हो रही है। जितनी जल्दी, जितनी सही जानकारी हम तक पहुंच रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो वज़ीर आज़म को ये इस बारे में, पूरी हादसे के बारे में बताया गया है वज़ीर दिफा के ज़रिए। अब तक जो वहाँ के मकामी कलेक्टर के हवाले से जो खबर है उसमें ये बताया गया है कि 4 लोग जो इसमें सवार थे उनकी बॉडीज़ मिली हैं। सवार लोगों में से 4 की बॉडीज़ मिली हैं और 3 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। तो ये इस का अपडेट है। ये बताया जा रहा है कि कन्नौर, या जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौर के पास ये हादसा पेश आया है और इस हादसे में ये हलाकतें आई है। वहाँ पर कोई एक जो मिलिट्री एकेडमी है उसके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जनरल विपिन रावत जा रहे थे। उनके हमरा उनकी अहलिया भी थी और उनके साथ और डिफेंस स्टाफ थे। तो उसी बीच कन्नौर की पहाड़ियों में, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनमें ये हादसा पेश आया है।